Assalamualaikum dear students, I am Avish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 6 class at STEM International. अभी हम चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे थे जो कि डिजिटल सिटीजनशिप के ऊपर था। आज उसी चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे MCQs को, फिलिंग द ब्लैंक्स को, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर्स को, साथ ही साथ हम उसमें प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। Exercise Section A. The correct answer. Statement 1. Digital citizenship refers to the dash use of technology. Responsible. Statement 2. Which of the following protects original work? Copyright. Option B. Statement 3. Using someone else's work without giving credit is called plagiarism. Option C. Statement 4. Which action shows a good digital citizenship? Option B. Respecting others online. Statement 5. Which of the following is an ethical standard for online information? Option B. Accuracy. Statement 6. Which health problem is caused by long screen time? Eye strain. Statement 7. Which rule should be followed in a computer lab? Option C. Saving work regularly. Statement 8. Keeping personal information safe online relates to confidentiality. Option B. Section B. Write T for true and F for false in the given circles. Statement 1. Digital citizenship encourages responsible online behavior. True. Statement 2. Piracy is a legal way to use software. False. Statement 3. Strong passwords help protect online accounts. True. Statement 4. Poor posture can cause health problems. True. Section C. Fill in the blanks. Statement 1. A person who uses technology responsibly is called a good digital citizen. Statement 2. A dash protects book, music, videos, and software from illegal use. Copyright. A copyright protects books, music, videos, and software from illegal use. Copying someone's work without credit is known as plagiarism. Statement 4. Authority helps users check if the online information is correct and reliable. Statement 5. Eye strain is caused by dash time, screen time. Keeping shared information secret is called confidentiality. Section D. Answer the following questions briefly. Question number 1. What is the digital citizenship? Digital citizenship refers to the responsible and ethical use of digital technology. Question number 2. What is plagiarism? Plagiarism is presenting someone else's work or idea as your own with or without permission. Question number 3. Write 2 characteristics of a good digital citizen. A good digital citizen uses technology safely and responsibly and protects personal data and information of others. Question number 4. What is copyright? Copyright is a legal right that protects original work created by an author. Question number 5. Why is online safety important? Protects your personal information, keeps you safe from strangers, prevents cyberbullying, protects your devices, helps you make good choices. Question number 6. Poor posture can cause health problems. True or false? It's true. Because it causes health problems like RSI, neck and back pain, and eye strain. Section E. Answer the following questions in detail. Question number 1. Explain the essentials of a good digital citizen. आपने पेज नंबर 78 के ऊपर एसेंशियल ऑफ अ गुड डिजिटल सिटीजन पढ़ा था। आपने एक्जैक्टली सेम वैसे ही इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। गुड डिजिटल सिटीजन इज समवन हु यूजेस डिजिटल डिवाइसेस एंड इंटरनेट रिस्पांसिबली, रिस्पेक्टफुली एंड सेफली। फिर आपने ये देखना है कि वो पर्सन क्या अंडरस्टैंड करता है। फिर हमने इसमें पढ़े थे गुड डिजिटल सिटीजनशिप के। फिर हमने इसमें पढ़े थे कि गुड डिजिटल सिटीजन के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। उस पर हमने 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जैसे कि वो टेक्नोलॉजी को सेफली और रिस्पॉन्सिबली यूज करता है, पर्सनल डेटा अपना और दूसरों का प्रोटेक्ट करता है, दूसरों की और अपनी जो स्पीच और ओपिनियन है उसको रिस्पेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ओपिनियन होती है आपको ऑनलाइन और उसको रिस्पेक्ट करता है, वो साइबर सिक्योरिटी के प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और एथिकल डिसीजंस लेते हैं इंटरनेट को यूज करते हुए। तो ये सारी चीजें आपके इस क्वेश्चन के आंसर में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2. Describe different types of plagiarism with examples. अब जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे प्लेजरिज्म, तो प्लेजरिज्म में हमने टोटल 4 टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म पढ़ी थी। तो इसमें सबसे पहले आपने प्लेजरिज्म को डिफाइन करना है, फिर आपने उसकी हर टाइप बतानी है और फिर टाइप के साथ अगर कोई एग्जाम्पल है तो आपने वो भी बतानी है। अब टाइप्स कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? ग्लोबल प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजल प्लेजरिज्म, पैचवर्क प्लेजरिज्म और सेल्फ प्लेजरिज्म। तो आपने ये सारी की सारी इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3. Explain health related issues caused by excessive use of ICT devices. इस चैप्टर के एंड में हमने ICT डिवाइसेस के एक्सेसिव यूज की वजह से होने वाली जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस किया था, जैसे कि आई स्ट्रेन, बैक एंड नेक पेन और RSI। तो आपने इन तीनों को इन डिटेल डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस. हैव यू एवर शेयर्ड योर पासवर्ड विद अ फ्रेंड? व्हाट रिस्क कैन दिस क्रिएट एंड व्हाट शुड यू डू इंस्टेड? क्या आपने कभी अपने किसी फ्रेंड के साथ
कोई अपना पासवर्ड शेयर किया है? अगर किया है तो इससे आपको क्या लगता है कि क्या रिस्क क्रिएट होगा और इसके इंस्टेड में आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि आपने अपने पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करने होते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ अपना कोई पासवर्ड शेयर करते हो एंड दैट फ्रेंड इज नॉट योर ट्रू फ्रेंड, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पे पोस्ट कर सकता है, आपके अकाउंट से कुछ अनएथिकल कंटेंट पोस्ट कर सकता है, या किसी साइबर बुलिंग में आपका अकाउंट यूज हो सकता है। तो उससे आपके जो डिजिटल आपका फुटप्रिंट है वो खराब हो सकता है और साथ में उसके आपके डिफरेंट कंसिक्वेंसेस होते हैं जो कि आपको कोर्ट पे ड्रैग कर सकते हैं। हैव यू एवर यूज्ड पिक्चर्स और टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट फॉर होमवर्क? क्या आपने कभी इंटरनेट से कोई पिक्चर्स लेकर अपने होमवर्क में यूज की है? हाउ कैन यू यूज ऑनलाइन मटेरियल विदाउट प्लेजरिज्म? अब आपने ये भी साथ में देखना है कि आप ऑनलाइन मटेरियल को विदाउट प्लेजरिज्म कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई ऑनलाइन पिक्चर लेकर अपने कंटेंट में यूज की हुई होती है तो उसका हमारे पास एक मेथड होता है रेफरेंसिंग का। तो कोई भी पिक्चर अगर आप लेकर अपने होमवर्क में या प्रोजेक्ट में यूज करते हैं तो उसके नीचे आपको पिक्चर को रेफरेंस करना होता है कि ये किसकी पिक्चर है, आपने कहाँ से ली है, आपने ये कब पोस्ट हुई थी और आपने इसको कब एक्सेस किया है। तो ये कुछ मेन चीजें होती हैं जो कि आपको उस रेफरेंसेस के अंदर मेंशन करनी होती हैं। थिंक एंड आंसर। Why should students respect copyright while using online content? अब आपके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप कॉपीराइट को फॉलो करो, ये कॉपीराइट को रिस्पेक्ट करो जब आप कोई भी ऑनलाइन कंटेंट यूज कर रहे होते हो। तो जब जो एक ऑथर होता है उसमें ऑथर, सिंगर या मूवीज वगैरह हर चीज के ऊपर कॉपीराइट होता है। तो आप विदाउट परमिशन आपको कंटेंट ना तो शेयर कर सकते हो, ना कोई पोस्ट कर सकते हो, ना ही उस कंटेंट को रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर आप कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपके पास परमिशन लाइसेंस होना चाहिए या उसको यूज करने का लाइसेंस होना चाहिए। अगर तो आपके पास वो लाइसेंस है तो आप उस कंटेंट को रिप्रोड्यूस या यूज कर सकते हो या ऑनलाइन शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप उसको फिर यूज कर रहे हो, पहली बात तो ये कि वो ऑनलाइन पोस्ट नहीं हो सकता और आपका अकाउंट वगैरह बैन हो जाता है। और अगर आप उसको फिर भी पोस्ट कर रहे हो तो जो उसका वो कंटेंट है वो आपके खिलाफ केस कर सकता है और वो आपको कोर्ट में ड्रैग कर सकते हैं। हाउ कैन सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑनलाइन रिस्क? अब सेफ प्रैक्टिसेस आपको ऑनलाइन रिस्क से किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, ये जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक तो इससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट होती है, आप अपने आप को स्ट्रेंजर से सेफ रख सकते हो, साइबर बुलिंग को आप प्रिवेंट कर सकते हो, अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो और जो आपकी गुड चॉइसेस होती हैं या इंटरनेट को यूज करते हुए जो हेल्दी चॉइसेस होती हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। एक्टिविटी वर्क। Write an algorithm to add two numbers and mention the input process and output. अब आपने एल्गोरिथम लिखना है दो नंबर्स का जिसमें आप उन नंबर्स को ऐड कर रहे हो, उनका इनपुट हो रहा हो, प्रोसेस हो रहा हो, आउटपुट, और फिर पूरा प्रोसेस आपने इसमें लिखना है। इन स्क्रैच लिस्ट एनी 5 ब्लॉक कैटेगरीज एंड राइट 1 यूज ऑफ ईच। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि स्क्रैच में आपने 5 ब्लॉक कैटेगरीज लिखनी है और फिर आपने हर कैटेगरी का कोई ना कोई एक यूज लिखना है। प्रोजेक्ट टाइम। लिस्ट 5 रूल्स दैट स्टूडेंट्स शुड फॉलो इन कंप्यूटर लैब। आपने 5 रूल्स लिखने हैं जो कि स्टूडेंट्स को लैब में फॉलो करने चाहिए। ये आपके इस चैप्टर में भी मेंशन्ड है, आप वहां से भी देख सकते हैं। प्रिपेयर पोस्टर ऑन बी रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन। अब आपने एक पोस्टर बनाना है जिसका आपका टाइटल होगा बी रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन और फिर उसके अंदर आपने लिखना है कि रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को आपको फॉलो करना होता है। ऑब्जर्व योर डेली स्क्रीन टाइम एंड सजेस्ट 2 ways टू रिड्यूस इट। अब आपने घर जाकर ये देखना है कि आपका जो फोन है उसका आपका स्क्रीन टाइम कितना है और आपने 2 वेज लिखने हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। 4 प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट वर्क के अंदर आपने 2 तरह के प्रोजेक्ट करते हैं, एक आपका डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट होगा, दूसरा आपका हेल्थ अवेयरनेस प्रोजेक्ट होगा। डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट में क्या होगा कि आपने एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन बनानी है ऑनलाइन सेफ्टी टिप्स पे ताकि आप वो स्टूडेंट्स को बता सकें कि वो किस तरीके से ऑनलाइन सेफ हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या फिर खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका एक प्रोजेक्ट ये हो जाएगा और दूसरा क्या होगा कि आपने एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसके अंदर आपने ये बताना है कि करेक्ट पोस्चर क्या होता है जब आप कंप्यूटर को या मोबाइल डिवाइस को यूज कर रहे हो। तो आपने इसमें 2 पिक्चर्स बनानी है, एक जब आपका करेक्ट पोस्चर क्या होगा कंप्यूटर को यूज करते हुए, दूसरा इसमें करेक्ट पोस्चर क्या होगा मोबाइल डिवाइसेस को यूज करते हुए। तो ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट है। तो जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज को डिस्कस किया था जिसमें हमने इन डेप्थ एमसीक्यूज को देखा, फिल इन दी ब्लैंक्स को देखा, हमने डिटेल में आंसर्स को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स को, एक्टिविटीज़ को, थिंक एंड आंसर्स को डिस्कस किया। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।